Hello dear students. Welcome in this 17th lecture and 4th unit of management. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed and learned during the previous unit. So in the previous unit, we discussed about organizational management and learn about steps in organization, steps of types of organization, departmentation, and forms of ownership. In forms of ownership, we have discussed about partnership, sole proprietorship, joint stock company, cooperative sectors, and government company. So now I am going to start unit 4, that is human resource management. So in this lecture I will discuss about personal management, then its introduction, definitions and functions of personal management. So let us start with the learning outcome of this session. So after this session, at the end of this session, you will be able to define the personal management, define human resource management, distinguish between human resource management and personal management, explain the personal management and describe the functions of पर्सनल मैनेजमेंट। तो एक चीज करने की एबिलिटी इस सेशन के बाद आपके अंदर आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये जो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। So human resource management is the practice of recruiting, hiring, deploying, managing and organizations employees। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक प्रैक्टिस अभ्यास है, वो लोगों को रिक्रूट करना, हायर करना, फिर उनको डिप्लॉय करना, यानी उसको काम पर लगाना और एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। Personal management, also known as human resource management, and personal management is concerned with the proper use of human factors, concerned with जो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उसके प्रॉपर यूज से कंसर्न है। पर्सनल मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस which is primarily concerned with human constituents of an organization। यानी जो ये पर्सनल मैनेजमेंट है, जो कार्मिक, इसका इसका हिंदी हम बोलते हैं कार्मिक प्रबंधन, उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि मुख्य रूप से मानव के जो एक संगठन का जो मानव घटक है ना, उससे इसका संबंध रहता है, उसके मैनेजमेंट से इसका संबंध रहता है। Again, personal management can also be defined as that field of management which is concerned with planning, organizing, directing, and controlling various operative functions of procurement, development, maintenance, and utilization of labor force in such a way that objectives of company, those of personnel at all levels, and those of community are achieved। यानी इसमें कहता है कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है, वो इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विच कंसर्न विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेटिव फंक्शंस, जो भिन्न-भिन्न ऑपरेटिव फंक्शन है, जो श्रम बल की खरीद, उसका रख-रखाव, विकास और जो है कि उपयोग के विभिन्न ऑपरेटिव कार्यों का जो उसका नियोजन, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण की स्थिति में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका सारे ऑपरेटिव फंक्शन को हम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली नियंत्रित करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, डायरेक्ट करें, निर्देशित करें, कंट्रोल करें, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ट्रेडिशनली पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम इज कंसर्न्ड प्राइमरली with 5 basic of systems, namely recruiting, placement, training, compensations, and
मेंटेनेंस, जो यदि हम इसको परंपरागत रूप से देखें तो पहले जो ये सिस्टम था वो अ, सिर्फ और सिर्फ उसका संबंध किससे था, तो रिक्रूटिंग, उन्हें भर्ती करने से, प्लेसमेंट करने से, ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण और रख रखाव से था। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज against these traditional functions should be considered a total system that interact with other major systems of the organization ना। अब जो है कि आज यदि हम इसको देखें तो ये जितने भी अदर सिस्टम्स हैं मैनेजमेंट के, जो कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ इनका इंटरेक्शन रहता है। क्यों? फॉर द परचेज, प्रोडक्शन, देन फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए। एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम इज टू सर्व दीज मेजर सिस्टम्स। और जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो ये है कि इन जो प्रमुख प्रणाली है, जो परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग, इनकी सेवा करना है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब वेरियस डिफिनेशंस हैं, कुछ डिफिनेशंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट यानी कार्मिक प्रबंधन का कुछ लोगों द्वारा दिया गया डिफिनेशंस है मैनेजमेंट थ्योरिस्ट द्वारा, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है फिलिपो। ये कहते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपेंसेशन, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals। यानी इनका कहना है कि फिलिपो का कि जो कार्मिक प्रबंधन है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है, वो जो है कि किसी क्या बोलते हैं उसको, संगठन में, किसी जो संगठन है उसके व्यक्तियों, समाज, लक्ष्यों के योगदान या उद्देश्य के लिए लोगों का आयोजन है, यानी उनका प्लानिंग है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और कंपनसेशन, उनका एकीकरण जैसे इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस है। तो ये सारी चीज़ ही कार्मिक प्रबंधन है, यही कहते हैं। और इसका किसके लिए ये है, तो किसी संगठन के लिए, किसी व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा ब्रेच का कहना है, जो एएल ब्रेच हैं, वो कहते हैं कि जो कार्मिक प्रबंधन दैट पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट विच इज प्राइमरली कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनका कहना है कि जो मुख्य रूप से जो संगठन के मानव संसाधनों से जो है कार्मिक प्रबंधन का संबंध है। कार्मिक प्रबंधन का संबंध है उस संगठन के जितने भी मानव संसाधन है, जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं मानव संसाधन, वो उनसे इनका संबंध है। और फाइनली जो है अकॉर्डिंग टू एमजे जूसियस, जूसियस के अनुसार पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट which has to do with planning, organizing, and controlling various operative activities of procuring, developing, maintaining, and utilizing a labor force so that the objectives and interest for which the company is established are attained as efficiently and economically as possible. And the objectives and interest of all levels of personnel and community are served to the highest degree। यानी कि एमजे जूसियस के अनुसार जो कार्मिक प्रबंधन जो है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का वह क्षेत्र है जिससे लेबर फोर्स की खरीद, उसका विकास, रख-रखाव, दैट इज मेंटेनेंस एंड उपयोग की विभिन्न ऑपरेटिव एक्टिविटीज की योजना, आयोजन एवं नियंत्रण के साथ करना होता है, ताकि कंपनी जिस उद्देश्य एवं हित के लिए स्थापित हो, उसे इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली जो है प्राप्त किया जाए।
तथा जो सभी स्तर हैं, जो सभी लेवल ऑल लेवल्स हैं कर्मियों के समुदायों के उद्देश्य हैं, उनकी जो रुचि है, उनको उच्चतम स्तर पर रखा जा सके, ना? ऑल लेवल्स ऑफ द पर्सनल्स एंड कम्युनिटी आर सर्व्ड टू द हाईएस्ट डिग्री। तो ये था डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब some basic differences between पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कुछ डिफरेंसेज है, इसको आप टेबल बना के दो पार्ट में भी लिख सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में डिफरेंस है। फर्स्ट है, personal management is a traditional approach of managing people in the organization, whereas human resource management is modern approach of managing people and their strength in organization। जो पर्सनल मैनेजमेंट है, जो कार्मिक प्रबंधन है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है कहता है। और ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो क्या है कि मॉडर्न अप्रोच है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों को, उसके लोगों को मैनेज करने का। दूसरा जो डिफरेंस है, पर्सनल मैनेजमेंट फोकसेज ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय welfare and labor relation with human resource management, सॉरी लेबर रिलेशन, इन तीन चीजों पर फोकस रहता है पर्सनल मैनेजमेंट का। while human resource management focuses on acquisition, development, motivation and maintenance of resources in the organization। अब देखिए इन जो पर्सनल मैनेजमेंट है, वो एम्प्लॉय के वेलफेयर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लेबर का रिलेशन, इन चीज़ों पर उसका फोकस करता है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से इन एम्प्लॉय को हायर करना है, उनका विकास कैसे होगा, उनको कैसे मोटिवेट रखना है, उनका रख-रखाव कैसे करना है, इन सारी चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका रख-रखाव कैसे करना है, इसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का फोकस होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ द पर्सनल मैनेजमेंट अज्यूम पीपल एज एन इनपुट फॉर अचीविंग डिजायर्ड आउटपुट। ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है, वो मानता है कि जो लोग हैं किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले, वो एक इनपुट है ना, उनको एक इनपुट के रूप में मानता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल के आउटपुट को देते हैं। जबकि जो while human resource management assume people as an important and valuable resources for achieving desired output। और एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच कहता है कि ये जो है पीपल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती रिसोर्सेज हैं, जो कि उस पार्टिकुलर लक्ष्य को या आउटपुट को प्राप्त करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। अब चौथा है, पर्सनल मैनेजमेंट फोकसेज ऑन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड सेटिस्फाइड द एम्प्लॉय। यानी ये पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस होता है कि किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाएं और एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेज ऑन इफेक्टिवनेस, कल्चर, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इन सारी चीज़ों पर उनका फोकस होता है। तो ये सारी चीज़ की किस तरीके से इसका वर्क इफेक्टिवली हो सके, कल्चर, उसकी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इफेक्टिवली हो सके, इन सारी चीज़ों पर इसका फोकस होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल मैनेजर, while human resource management is concerned with all level of manager from top to bottom, top to बॉटम, यानी ऊपर से नीचे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, इन सभी लेवल के मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का संबंध होता है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट जो कहता है कि पर्सनल मैनेजर मतलब कि हायरिंग हो गया, एम्प्लॉयज को हायर करना है, उसको जो है रेमुनरेशन देना है, उसको कब ट्रेनिंग में भेजना है, उसका रूटीन फंक्शन क्या होगा, इससे इनका जो पर्सनल मैनेजमेंट यानी कार्मिक प्रबंधन का संबंध है। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, is that personal management is a routine function
while human resource management is a strategic function। यानी कहता है कि जो रूटीन फंक्शन है पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें ये हम क्या करना है प्लानिंग करते हैं, फिर उनको कब ट्रेनिंग पर भेजना है वो करते हैं, फिर प्रमोशन कब देना है ना, फिर इंक्रीमेंट कब लगाना है उनके सैलरी में, ये सारे चीज़ इसके अंदर आते हैं। इसलिए ये क्या है कि रूटीन फंक्शन है। वाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक। कैसे स्ट्रेटेजिक है कि रणनीति होगी एम्प्लॉय और जो है कि एम्प्लॉयर का रिलेशन क्या होगा ना, बिकॉज जो कि यूजिंग हायर टेक्निक क्या होगा लाइक ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, कंपटीशन, एम्प्लॉय रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कैसे उनको हायर करें, कैसे उनको ट्रेनिंग भेजें, क्या हमारे रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया होगी ना। तो इसलिए यह एक रणनीतिक फंक्शन होता है पर्सनल मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से इन दोनों में हम अंतर भी देख लिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप इसको ध्यान दीजिए। यानी देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ना। सो कार्मिक प्रबंधन के बहुत सारे कार्य हैं, और जैसे फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सैलरी स्ट्रक्चरिंग, एम्प्लॉयज वेलफेयर। सो these are the functions of personal management. So let us start with मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग का मतलब पहले साधारण चीज़ों में इतनी लंबी चौड़ी पढ़ने से पहले हम लोग और समझने से पहले इसका बेसिक शब्दों में जान जाए कि मैन पावर जिसको हमें सेलेक्ट करना है पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहले हमको ये जानना होता है कि उसका स्किल क्या होगा, वो किस क्षेत्र में उसको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, कितना हमें मैन चाहिए उस पार्टिकुलर वर्क के लिए, कितना हमें वीमेन चाहिए ना, क्वालिटी उसका क्या होगा ना, क्वांटिटी कितनी ज़रूरत है, कितने लोगों की भर्ती करना है ना। इन सारी चीज़ों की प्लानिंग हम इसमें करते हैं, ठीक ना। और क्या वो किस तरीके से कितने दिन में उनको हायर कर लेना है, कब उनको ट्रेनिंग में भेजना, ये सारी चीज़ इसमें हम मैन पावर प्लानिंग में करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि मैन पावर प्लानिंग क्या है। अब देखिए, बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सनल बीइंग, an organization has to make an assessment of its requirement in terms of number of personnel needed for a job, definition of job। यानी कह रहा है कि जब हम शुरू करने से पहले, ये प्रोसेस सिलेक्शन का शुरू करने से पहले हमें असेसमेंट करनी होगी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कितने पर्सनल, कितने कर्मियों की ज़रूरत है कुछ जॉब के लिए, उसका जॉब का डिफिनेशन क्या होगा, उनकी स्किल, जो लोग आएंगे उनका स्किल और स्पेशलाइजेशन क्या होगा ना, क्या क्या रखना होगा ना। इट्स इंटर द ड्यूरेशन फॉर विच पर्सनल आर रिक्वायर्ड, कितने टाइम के लिए जो है कि कर्मियों की ज़रूरत है, नेचर ऑफ वर्क उनका क्या होगा, ये सारा चीज़ इसमें प्रबंधन में हम देखते हैं। मैन पावर प्लानिंग इज इंगेज्ड विद दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, जो ये ऊपर मैंने बताया। ऑर्गेनाइजेशंस whether large or small, whether public or private, are in constant need of manpower. They require men and women for different level of positions for performing different kinds of job at different places and intervals. So the number of personnel with defined skills and specialization needed at different periodic interval have to be forecasted। यानी ये कह रहा है कि जो आप चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, एंड दैट इज पब्लिक सेक्टर का हो, ये काम लगातार चलता है। और कितनी हमें औरत चाहिए, कितना हमें मर्द चाहिए उस पार्टिकुलर वर्क के लिए, मेल और फीमेल, ये जो है कि डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट पोजीशन पे, ये भी जो है उसमें ताकि वो डिफरेंट प्लेसेज पर एक इंटरवल पर वर्क कर सके, ये भी हमें इसमें दिखाना होगा। द नंबर ऑफ पर्सनल क्या उनकी स्किल चाहिए, विद डिफाइंड स्किल, स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, तो ये चीज उसमें होना चाहिए ताकि हम सही से फोरकास्ट कर सकें। देन मैन पावर प्लानिंग प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पर्सनल एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू हायर, ट्रेन और प्रमोट इन गिवन पीरियड। यानी देखिए, ये एक लाइन में क्या है, आप इसको मैन पावर प्लानिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि
ये हमें प्रिडिक्ट करता है, इस भविष्यवाणी करता है कि कितने हमें कर्मी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ना, और कितना हमें हायर करना है, कितने को ट्रेनिंग पर भेजना है, कितना को परमिशन देना है किसी सर्टेन पीरियड में। मैन पावर प्लानिंग कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ गोल आर एक्सप्लिसिटली लेड डाउन। यदि हमारा जो लक्ष्य है वो क्लियरली उसको मैं ले डाउन किया गया है, तो हम इसको जो है कि और काफ़ी इफ़ेक्टिव ढंग से इसको दिखा सकते हैं। दिस प्लानिंग हैज़ टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सनल needed for a specific job. The methods used for this purpose are job analysis, job description, job specification, workload analysis, workforce analysis. So, without effective manpower planning, the other functions of personal management, that is recruiting, placement, training, promotion, welfare of employees, etc., cannot be performed properly. यानी जो हम यदि इसको इफेक्टिवली इसका सारा ये हमारा डिस्क्रिप्शन न रहे, उसका सही से एनालिसिस न रहे, तो इन सारी चीज़ों के बिना हम मैन पावर प्लानिंग सही से नहीं कर सकते हैं। और जब ये सही नहीं होगा, उचित मैन पावर प्लानिंग नहीं होगा, तो कब हमें रिक्रूट करना है, पर्सनल मैनेजमेंट है का जो फंक्शन है, यानी कार्मिक प्रबंधन का जो कार्य है, मतलब कब उनको हमें भर्ती करनी है, कब उनको प्लेसमेंट देना है, कब उनको प्रशिक्षण देना है, कब उनको उन्नति देनी है, प्रमोशन देना है ना, उनका वेलफेयर क्या होगा, इन सारी चीज़ों का जो है कि उचित ढंग से परफॉर्म करना मुश्किल है। अब हम आते हैं सेकंड, रिक्रूटमेंट, भर्ती जिसको बोलते हैं। तो वंस द डिटर्मिनेशन ऑफ मैन पावर नीडेड हैज बीन मेड, द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैन बिगिन। जब आप हमारा मैन पावर प्लानिंग हो गया क्लियर, कि हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया कि हमें इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सपोज दैट हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें मैंने कर लिया कि इतने लोग हैं, इस लोगों को और इतना पोस्ट खाली है, तो इसमें इतने और लोगों की भर्ती करने की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस बिगन। तब हम उसके बाद जो भर्ती और उनकी जो है नियुक्ति की प्रक्रिया, उनका सिलेक्शन का प्रक्रिया शुरू करेंगे। So recruitment is the process of searching for prospective workers and stimulating them to apply for job in the organization, or it is a positive function which aims at increasing the selection ratio, that is the number of participants for job opening। यानी ये क्या है कि इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन। इसलिए पॉजिटिव फंक्शन इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को जब उनको जो प्रोस्पेक्टिव हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि आप इस पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए ना, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और इसका ये उद्देश्य होता है कि जो पार्टिकुलर जॉब के लिए जो उचित कैंडिडेट चाहिए उसको हम सेलेक्ट करें, प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो सही व्यक्ति सही पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सके। तो इसलिए इसे कहते हैं कि इट इज द पॉजिटिव फंक्शन which aims to increasing the selection ratio, that number of applicants per job opening. Recruitment implies matching personal characteristics of potential employees with the job requirement। यानी जो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट का, वो और जो हमारा जॉब रिक्वायरमेंट है, उन दोनों में मैचिंग होनी चाहिए। जब एग्जैक्ट मैचिंग रहेगा तो बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, और वही सेम स्किल के वाला व्यक्ति वहाँ पर को सेलेक्ट करना है, तो यदि सेम स्किल जो भी है और सारा चीज़ जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर बंदे में है, तो इट इज़ बेटर। The source of recruitment can be broadly classified into organization। Okay, broadly classified into two, internal or internal. So internal sources refer to the present working force of an organization. In the events of vacancy, someone already on the payroll is promoted, transfers, or sometimes demoted.
External sources refer to the method adopted by organization to attract people from outside the organization through assessment of their qualification, skills and potential. तो हमारे पास दो स्रोत होते हैं, एक इंटरनल स्रोत, दूसरा एक्सटर्नल स्रोत। इंटरनल स्रोत वो स्रोत होता है जिसमें लोगों को हम अंदर के लोग जो पहले से उसमें काम कर रहे हैं उसी को प्रमोशन करके उनको ट्रांसफ़र करके डिफरेंट पोस्टों को डिफरेंट डिपार्टमेंट में भर दिया जाता है। जबकि एक्सटर्नल स्रोत वो स्रोत है जिसमें कि हम बाहर से हायर करते हैं लोगों को, जिसमें कि जिनमें कि उनका क्वालिफ़िकेशन, उनका स्किल, उनका पोटेंशियल, इन सभी को असेस करके और असेसमेंट के आधार पर उनको उनका सिलेक्शन किया जाता है। The final steps in the selection process is that of introducing new employees into the new social settings of his वर्क। और जब इनका सिलेक्शन हो गया, चाहे वो इंटरनल सिलेक्शन हुआ या एक्सटर्नल हो गया, तो हम लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं जहां कि उनको जो वर्क कल्चर है, जो वर्क का इन्वायरमेंट है, उससे उन नए जो एम्प्लॉय है उसको अवेयर कराते हैं, उनको अवगत कराते हैं। दिस इज डन बाय फेमिलराइजिंग the employee with new and surroundings and the rules and regulations of the organization. The various training methods are used to upgrade the skills of the new recruits and integrate their goals with the organizational goals. यानी सिलेक्शन के बाद हम इनको डिफरेंट जो न्यू सराउंडिंग्स है, जो न्यू रूल्स रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे उनको अवगत कराते हैं। और अवगत कराने की जो बहुत सारे मेथड को हम यूज करते हैं, जैसे कि हम उनको वर्कशॉप करा दिए या एक साथ बैठाकर उनको ओरिएंटेशन कराएँ ना, या ऐसे ही एक मौखिक तौर पर मैनुअल उनको प्रोवाइड कर दिए। तो ये सारी चीज़ों को किसी न और उनका जो ये भी हमने अवगत कराया कि जो आपका पर्सनल गोल है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच होनी चाहिए। वहीं जब आपका पर्सनल गोल मीट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल मीट होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका हूँ इसके बारे में। अब आते हैं ट्रेनिंग। Training is a well-articulated effort to provide for increased competence in service by imparting professional knowledge, broader visions, correct patterns of behavior, habits, and aptitudes. It should be continuous process in response to continuously felt need. The training helps the interact by inculcating occupational skills and knowledge by making him or her familiar with the objectives of the organization and his her potential contribution in the furtherance of departments और ऑर्गेनाइजेशंस गोल। यानी कहता है कि ट्रेनिंग एक वेल आर्टिकुलेटेड जो है कि प्रक्रिया है, मतलब एक अच्छी तरह से सोची समझी एक सार्थक कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, जिसमें कि लोगों को एक सर्विस को करने के लिए चेंजेस, क्योंकि ट्रेनिंग जो है कि सिस्टम में चेंजेज होते रहता है। तो ट्रेनिंग इम्पार्टिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जो नया नॉलेज, नया जो विज़न है, जो पैटर्न है, जो नई चीज़ें आई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से सिस्टम में, उससे अवगत कराकर लोगों को उससे क्या बोलते हैं, सिस्टम के साथ अपडेट रखते हैं। और इट शुड बी ए कंटीन्यूअस प्रोसेस है ना? इसकी इसलिए ज़रूरत होती है कि लोग ऑब्सोलीट ना हो जाएँ, अदरवाइज़ उनको रिट्रेंचमेंट उनको करना पड़ेगा, कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा और फाइनली वो जॉब से आउट हो जाएँगे। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग लगातार होते रहना चाहिए। हम लोग की भी ट्रेनिंग होती है, देखिए लगातार होता रहता है, 5 साल तक करना है मॉड्यूल्स, फिर 5 साल जैसे क्रॉस होगा तो दूसरे मॉड्यूल शुरू होंगे। तो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग हमारी भी होती है, ताकि हम जो नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उससे अपने आप को अवेयर और इक्विप्ड रखें, ताकि समय के साथ हम बरकरार रहें। अदरवाइज हम मेरा स्किल और व्हाटएवर आई हैव लर्न ड्यूरिंग माय स्टडी पीरियड, इट विल बिकम ऑब्सोलीटेड और बिकम ऑब्सोलीट। ओके, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ट्रेनिंग हेल्प्स जो भी टू इनकलकेटिंग ऑक्यूपेशनल स्किल, जो ऑक्यूपेशनल स्किल है, नॉलेज, वो उनके अंदर
समाहित करता है जो पुराने लोग हैं, जो उससे फ़ेमिलियर नहीं है, ना? और ये एक हिसाब से जो हमारी कंपनी है उसको आगे बढ़ाने में ये मदद करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एडजस्ट द एम्प्लॉइज विद कांस्टेंट चेंजेस इन गोल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉय को उसके साथ बनाए रखता है, जो कि टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशन का, जो लक्ष्य है वो लगातार चेंज होते रहता है। द deficiency of new appointees may be corrected by imparting the necessary training. And training is art of increasing the knowledge and the skills of an employee for doing a particular job. So it is concerned with imparting a specific skill for a particular purpose. ये कह रहा है कि ये जो न्यू अपॉइंट नहीं हो रहा है और ज़रूरत है पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उसको भी हम ट्रेनिंग करके उस ज़रूरत को ट्रेनिंग के माध्यम से फुलफिल करते हैं। यह एक कला है जिसमें कि सर्टेन स्किल, सर्टेन नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। किस तरीके से किसी पार्टिकुलर जॉब को करें। जैसा कि सिस्को की आप एग्ज़ाम्पल दें, हम लोग नाम नहीं सुने थे, लेकिन सिस्को ने एक ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग को इतना इक्विप्ड किया कि अपना कंप्यूटर सेटअप खुद ही प्रिपेयर कर लीजिए और अपना क्लास खुद ही आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा चीज़। तो ये क्या रहा कि अलग से एक किसी एम्प्लॉयी को वहाँ न रखना पड़े, ना किसी भी अलग से एम्प्लॉयी को ना हायर करना पड़े। वही लोग जो मल्टी टास्किंग की तरह वर्क करें कि हर काम खुद कर लें, ना? तो अलग से एम्प्लॉयी हायर करने की ज़रूरत ना पड़े, तब तक इन्हीं से इनको ट्रेनिंग देकर ये काम किया जा सकता है या कराया जा सकता है। सो जैसा कि जो कोई भी पार्टिकुलर जॉब जो रिलेटेड है, तो इट इज़ कंसर्न्ड विद इम्पार्टिंग अ स्पेसिफिक स्किल, यानी यह एक सर्टेन स्किल को इम्पार्ट करना, प्रोवाइड करना, उसको ट्रांसफ़र करने से इसका संबंध है। एंड ट्रेनिंग कैन बी इनफॉर्मल, फॉर्मल। Formal training is training by doing the work and learning from mistake. Ultimate success of informal training depends upon experience and seniority of senior officers, his her interest in a new entrant. Aim of formal training is to inculcate administrative skill in personnel through well defined courses. तो सारी चीज़ें चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो या लर्निंग बाय डूइंग हो, तो ये जो अल्टीमेट इसका सक्सेस इस ये डिपेंड करता है कि जो एक्सपीरियंस और सीनियरिटी जो ऑफिसर्स हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो किस प्रकार की स्किल हेल्ड करते हैं, रखते हैं, ना? और ये इसका मैंने जैसा बताया आपको कि ये इसलिए इसकी ज़रूरत है कि आप हमेशा सिस्टम के साथ अपने आप को आप इक्विप्ड रखिए। प्रमोशन अब जो है कि ये इसीलिए लोग करते हैं कि भाई कहीं न कहीं हमें प्रमोशन मिलेगा। एक मोटिवेशनल चीज़ है कि हम ट्रेनिंग करेंगे, प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे तो हमें प्रमोशन भी आगे समय से दिया जाएगा। सो अनदर वाइटल फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज़ प्रमोशन। So the word promote is derived from the Latin expression promovere. It means move forward. यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा ना। सो प्रमोशन मीन्स एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए जॉब बेटर देन द प्रेजेंट वन इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर प्रेस्टाइज और स्टेटस, ग्रेटर स्किल्स एंड इंक्रीज इन पे। यानी प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब होता है कि जो आप जिस पोजीशन में आज हैं, उससे बेटर पोजीशन में आपको पहुँचाना, और इस शब्दों में पहुँचाना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगा, स्तर भी बढ़ जाएगा, स्टेटस बढ़ जाएँगे, ग्रेटर स्किल होनी चाहिए और आपका साथ-साथ में जो सैलरी है, जो पे है, वो भी बढ़ जाएगा। तो according to Wilboy, sound promotion system should fulfill following condition. अब जो साउंड प्रमोशन सिस्टम है उसको निम्नलिखित कंडीशन जो है उसको फुलफिल करना होगा। फर्स्ट है एडॉप्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, सेटिंग फोर्थ ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी ये कहता है कि जो स्पेसिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है ना, आगे इसको क्वालिफ़िकेशन है जो रिक्वायर चीज़, उसको फुलफ़िल होना चाहिए प्रमोशन में। अदरवाइज़ पैरवी वगैरह पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स करेगा और इससे जो है कि जो क्वालिटी उनमें होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगा।
Second है the classification of these position into distinct classes, salaries, graded and services ना, उनका क्लासिफिकेशन जो पोजीशंस का है वो होने चाहिए डिफरेंट सैलरीज ग्रेडेड जो भी है उस के अकॉर्डिंग। एंड द थर्ड है वो है कि द inclusion within this classification of all the higher administrative position except those having political character, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो कि राजनीतिक चरित्र वाले लोग को छोड़कर यदि सभी उच्च प्रशासनिक पदों के इस वर्गीकरण में शामिल हैं, यानी कहता है कि इस जो इंक्लूजन है इस प्रमोशन में इनमें हर क्लास के व्यक्ति शामिल होते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जो पॉलिटिकली थोड़ा साउंड होता है तो वो थोड़ा-सा पैरवी वगैरह लगाकर भी अपना प्रमोशन करा लेता है। तो इसीलिए यही बोल रहा है कि जो है द इंक्लूजन विदिन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन एक्सेप्ट दोज हैविंग पॉलिटिकल कैरेक्टर्स। द अडॉप्टेशन फोर्थ द अडॉप्टेशन as far as possible of principle of recruitment from within for filling of the higher post ना, जो जो प्रिंसिपल है जो सिद्धांत है भर्ती की जो प्रक्रिया का जो हायर पोस्ट भरने का उसको अडॉप्ट करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, पॉसिबल संभव हो सके उसका जो है कि फॉलो करना चाहिए। And final, the adaptation of principle of merit in determining relative merits of employees eligible for advance। ये भी होनी चाहिए कि जो मेरिट को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिलेटिव जो पार्टिकुलर व्यक्ति है उस जो एग्जिस्ट करता है ना जो एलिजिबल है उसके लिए उसको जो डिजर्व करता है मिलनी चाहिए, यानी जो प्रिंसिपल है उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना हो। तो thus principle of seniority and principle of merits are used in the system of promotion। ये दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। पहली तो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है प्रमोशन में कौन सीनियर है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मेरिट मेरिट में कौन आ रहा है ना, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा और रखा भी जाता है ये प्रमोशन में। So, in order to determine the merit of employees, a scientific system of performance appraisals need to be developed, and it should be made as objective as possible. The appraisal should be of regular and continuous nature and should evaluate the quality, quantity, and style of performance. So, it should include also an appraisal of the growth potential of an employee. Okay, तो ये सारी चीजें है। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट दैट इज द सैलरी स्ट्रक्चरिंग। ओके, so development of sound salary system is an important function of personal management। जो साउंड सैलरी सिस्टम एक मतलब ऐसी सैलरी सिस्टम होनी चाहिए कि आप जितना के लिए डिजर्व करते हैं उतनी इनकम आपको देनी चाहिए फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। सैलरी हैज टू बी स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फील adequately rewarded and resources available to the organization are optimally utilized। ओके, यानी कि जो सैलरी है जो आपको सैलरी किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही है वो जो है कि एडेक्वेट होनी चाहिए, रिवार्डेड एक जो पर्याप्त होनी चाहिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं ताकि जो है उसका आप ऑप्टिमल यूटिलाइज कर सकें। तो फ्लोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साउंड पे सिस्टम। किस तरीके से हम साउंड पे सिस्टम सैलरी सिस्टम को डेवलप करें, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है पे स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल एंड रेशनल। जो पे स्ट्रक्चर है वो साधारण और रेशनल विवेकपूर्ण होनी चाहिए। द पे ऑफ ए पोस्ट शुड बी रिलेटेड टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच टू द पोस्ट। यानी जो पे है वो जो आपको ड्यूटी दिया गया है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों के साथ होनी चाहिए अटैच, यानी कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ज़्यादा ड्यूटीज है आपका पे स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होना चाहिए। So the pace should be comprehensive and adequate to maintain certain standards of living। और ये इतना होने चाहिए
इस लेवल तक व्यापक होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ताकि आपका जो सर्टेन स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको आप मेंटेन कर पाइए। तो इसको भी ध्यान देना होगा जो है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो है apart from basic salary, additional allowance such as house rent allowance, conveyance, uh, then allowance, recreation allowance, leave encashment, festival loans can be given to employee. Moreover, the salary scales have to be constantly revised in the view of price rise or increase in profits for the organization. यानी कि जो डिफरेंट अलाउंस है ना, चाहे वो मनोरंजन अलाउंस हो गया, रिक्रिएशन का ना, लीव का, फेस्टिवल का, ये सारे चीज़ें उनको देते रहना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय का मोटिवेशन बना रहे और वो हमेशा समय समय पर उसका जो सैलरी का जो स्केल है वो रिवाइड होते रहना चाहिए, ताकि पीपल मोटिवेट रहे आगे वर्क करने के लिए, जो भी एम्प्लॉय है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। अब एम्प्लॉयज वेलफेयर, फाइनली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। कार्मिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रबंधन कार्य है, वो क्या है कि एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी जो है कार्मियों का कल्याण। So a good personal system always gives topmost priority to well-being of employee. Sound personal policies, proper recruitment, promotion techniques, uh, conducive training methods, etc. create a certain physical and mental condition of the employee so necessary for good performance, and these conditions need to be maintained as well. यानी कहता है कि एम्प्लॉय वेलफेयर में यहाँ चाहे आपका जो उसका जो बोलते हैं कि वेलबींग है, उसको टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए एम्प्लॉय का। दूसरी बात कि जो पॉलिसी है, जो उनका रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया है, जो उनको प्रमोशन का जो टेक्निक है ना, वो उचित होनी चाहिए, और जो है कि इस तरीके का साउंड होना चाहिए, ताकि जो है कि उसमें किसी प्रकार का बायसनेस ना हो। अब द एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोग्राम्स क्रिएट एंड स्टिमुलेट मोरल which contribute to the creation and maintenance of favorable attitudes toward work and work environment. These programs includes fringe benefits such as holidays, different types of leave encashment, leave entitlement, educational facilities, canteen facility, leave travel fare concession, employees physical condition is maintained through safety and health programs, group health insurance plans, regular medical एग्जामिनेशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें जो है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन लाइक प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, स्पेस एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा, दीज आर ऑल एम्प्लॉयज वेलफेयर मेजर। यानी आप ये देख रहे हैं, ये सब एम्प्लॉयज यानी कर्मी कल्याण के अंदर आता है। यानी उसका बच्चों की सुविधा होना चाहिए, एजुकेशन का, कैंटीन की फैसिलिटी, लीव होना चाहिए समय समय पे ना, फिर उनका जो फिजिकल हेल्थ और उसका जो सेफ्टी का भी होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस उनका होना चाहिए, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक उचित वहाँ पे काम करने का माहौल बना रहे, इस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये सभी जो है कि एम्प्लॉयज वेलफेयर के अंतर्गत आता है। So maintenance of discipline and following a code of conduct in organization also help in creating conductive work environment in the organization, which is important for employee welfare ना। तो ये चीज़ भी है, महत्वपूर्ण है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोड ऑफ उसका कंडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक वर्क इन्वायरमेंट जो अनुकूल काम करने का माहौल वहाँ पे वातावरण क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ए प्रॉपर रिटायरमेंट स्कीम इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर एम्प्लॉइज वेलफेयर। द ऑर्गेनाइजेशन need to assure its employees an easy and
carefree life in their old age. The age of retirement can be anywhere between 50 to 65. Proper retirement benefits attract talented persons to the organization. Besides pensions, some other benefits such as allowance to take care of inflation, medical facilities, provident funds, family pension, travel concessions are also provided to retired employees. यानी ये कह रहा है कि जो पहले तो एक प्रॉपर रिटायरमेंट स्कीम होनी चाहिए और हर कहीं में यदि आप देख लीजिए हर ऑर्गेनाइजेशन में तो 50 से 65 के बीच में लोगों को रिटायर किया जाता है। 50 से 65 की उम्र प्राप्त वो रिटायर होते हैं। अब जब रिटायर हो गए यानी आपने पूरी लाइफ उस कंपनी में का सेवा की, उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेवा किया, उसके बाद एक केयरफेयर ओल्ड एज में आपको ध्यान रखने के लिए उसको प्रॉपर रिटायरमेंट का जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करते रहना चाहिए। जैसे वो हो गया जैसे कि सम अदर बेनिफिट कि आपको इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है, घटते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटायरमेंट बेनिफिट वो दे ताकि आप उसमें वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आप सिस्टम में रहकर ले पाते थे, उसको आप ले सकें, उसका उपभोग आप कर सकें। मेडिकल फैसिलिटीज जो है होनी चाहिए आपको प्रॉपर। प्रोविडेंट फंड जो है कि वो चीज़ जो कि थ्रू आउट द जॉब आपने जब तक काम किया तब जो कटाते रहे हैं पैसा ना, वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहा है। फैमिली पेंशन, ट्रैवल कंसेशन यदि आप जाते हैं तो कुछ आपका ये होना चाहिए कि आपने इतने सालों तक कंपनी की सेवा की तो आपको हाफ फी लगेगा या क्वार्टर हाफ लगेगा, जो कुछ भी है क्वार्टर मतलब 1/4 लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसेशन और वो रिटायर्ड एम्प्लॉयी को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये भी वेलफेयर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस सेशन में क्या पढ़े तो ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव लर्न अबाउट दिस। थैंक यू, थैंक यू। अब इसी के साथ मैं इसका एंड करता हूँ।